Hello, students. I hope you all are doing well. Once again, welcome back to the online class, students. Students, in today's class, what we will do is we will discuss about the components of soil. That is on page number 30, the components of soil, that is activity 3.1. Alright, children. And before that, let me tell you in our previous class, what we learned was we learned about the layers of the soil, the four important layers of the soil. That was what? They are topsoil, subsoil, bedrock, and parent rock, right? So, here you can clearly see the picture of the layers of the soil, okay? A clear picture of the layers of the soil that is in your book, that is on page number 30. Alright, children. So, here, this is the topsoil. This is the top part of the first layer of the soil, that is called topsoil. And below the topsoil, we have what? Subsoil, right? And in this soil, in this subsoil, we can find small stones and pebbles. Okay, ये subsoil में what can we find? We can find small stones and pebbles. Small stones means छोटा छोटा पत्थर and pebbles वगैरह इस भाग में पाए जाते हैं. All right. Then after that is what? Bedrock. Okay. What can we find here? Bedrock में water trickles down and groundwater is collected here. राइट तो यहाँ पर बेड रॉक में क्या होता है वाटर क्या करता है ट्रिकल करता है ओके यहाँ पर अब्जॉर्ब होकर रहते हैं और उसके बाद ये बेड रॉक में ही ग्राउंड वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है यहाँ पर ही क्या करते हैं अब्जॉर्ब होकर यहाँ पर क्या होता है एब्जॉर्ब होके रहते हैं ऑलराइट बेड रॉक पे यू कैन फाइंड द ग्राउंड वाटर देन लास्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड पेरेंट रॉक ये पेरेंट रॉक है राइट एंड इन दिस पेरेंट रॉक you can find large rocks on weathered rocks. Alright, children. So these are the four important layers of rocks. Alright, and below that is what? Fill in the blank, children. You can see the fill in the blanks here. These from 1 to number 6. Okay, the 6 fill in the blanks. Please do it on your own. Okay, it is based on whatever I have taught you in my previous class. Okay, मैंने आप लोग को previous class में जितना भी पढ़ाया उसके ऊपर ही this is based. Okay, this thing is based, so you can do it easily. All right, first you try to do it on your own. I'll send you the solution of this in my next class. All right, children. So today we will do about the activity that is 3.1. Okay, activity components of soil, activity 3.1, that is on page number 30. Okay, this is what? This is the experimental part. ओके ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट है इसको आप लोग क्या करना चाहिए आप लोग को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए एंड फॉर दिस आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू टुडे ऑलराइट चिल्ड्रन ऑलराइट लेट अस बिगिन विद द लेसन चिल्ड्रन. Here what you can see is activity 3.1. Alright, so here what it's written aim. Alright, it's written aim. Aim क्या है? What does aim means? Aim here means what? Aim का मतलब है यहाँ पर हम लोग को किस चीज़ के बारे में यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं. दैट इज़ आवर एम. हमारे मकसद क्या है. ओके, एम का मतलब मकसद. तो ये इस लाइक एक्टिविटी 3.1 में हमारे मकसद क्या है. व्हाट इज़ आवर एम. आवर एम इज़ टू फाइंड आउट व्हाट सॉइल कंटेन्स. राइट, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट एवर द सॉइल कंटेन्स. तो मिट्टी के अंदर सॉइल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं. ओके, तो हम लोग उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे. वी विल फाइंड आउट. फाइंड आउट का मतलब हम लोग खोज निकालेंगे. ओके, थ्रू आवर एक्सपेरिमेंट. ओके, एक्सपेरिमेंट के मदद से. ऑलराइट, देन आफ्टर दैट इज व्हाट मटेरियल्स रिक्वायर्ड. सॉइल, ट्रांसपेरेंट जार एंड क्लियर वाटर. ओके, मटेरियल्स रिक्वायर्ड का मतलब क्या है. अंडरलाइन वर्ड एम. ओके, देन अंडरलाइन मटेरियल्स रिक्वायर्ड. मटेरियल्स रिक्वायर्ड का मतलब क्या क्या चीज़ हम लोग को चाहिए इस एक्सपेरिमेंट करने में. ओके, सो मटेरियल्स रिक्वायर्ड इज व्हाट. सॉइल, हम लोग को एक मिट्टी चाहिए. लाइक
हैंडफुल ऑफ सॉयल, ओके, एक हाथ, एक मुट्ठी भर का मिट्टी, ओके, हैंडफुल ऑफ सॉयल. देन आफ्टर दैट ट्रांसपेरेंट जार, अंडरलाइन द वर्ड ट्रांसपेरेंट जार, अंडरलाइन द वर्ड सॉयल. ट्रांसपेरेंट जार का मतलब क्या है? एक ऐसा वाला ग्लास का एक जार, ओके, बर्तन, ऐसे बॉटल चाहिए हम लोग को. ओके, ट्रांसपेरेंट का मतलब जो ट्रांसपेरेंट होता है, जो अंदर का बाहर से जो सब चीज़ देखते हैं, लाइक अ ग्लास. ओके, ऐसे ट्रांसपेरेंट जार बोलते हैं. एंड क्लियर वाटर का मतलब क्या है? साफ पानी, सफ़ेद पानी. ओके, क्लियर वाटर, साफ पानी. देन प्रोसीड्यूर, अंडरलाइन द वर्ड प्रोसीड्यूर. Take a transparent jar, put a handful of garden soil into the jar and fill the remaining jar with water. Leave it undisturbed for some time, allowing the components to settle down. Okay, once again, I'll read this procedure. This is called procedure, Procedure, procedure. Take a transparent jar, put a handful of garden soil into the jar and fill the remaining jar with water. Leave it undisturbed for some time, allowing the components to settle down. तो प्रोसीजर का मतलब क्या है? आप लोग को कैसे फॉलो करना है, क्या चीज़ करना है. ओके, प्रोसीजर. फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ ट्रांसपेरेंट जार. जो चीज़ आप लोग को मैंने बोला था कि सॉयल चाहिए आप लोग को, एक ट्रांसपेरेंट जार चाहिए और क्लियर वाटर चाहिए. ओके, तो पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपेरेंट जार लेना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है. 1 ट्रांसपेरेंट जार इज गिवन हियर. एक आप लोग ट्रांसपेरेंट जार रखिए. पुट अ हैंडफुल ऑफ गार्डन सॉइल इनटू द जार. ओके, तो वो जार के अंदर आप लोग को क्या डालना है? जो मैंने आप लोग को बोला था, एक हैंडफुल, मुट्ठी भर का सॉइल, मिट्टी जो लाया है, उसको आप लोग को वो ट्रांसपेरेंट जार के अंदर डालना होगा. ओके, एंड फिल द रिमेनिंग जार विथ वाटर. तो उसके बाद हैंडफुल ऑफ सॉइल डालने के बाद, मिट्टी डालने के बाद, उसके ऊपर से आप लोग को जो क्लियर वाटर है उसको डालना होगा. ओके, देन लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, अंडरलाइन द वर्ड अनडिस्टर्ब. ओके, हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर, अनडिस्टर्ब का मतलब है फॉर सम टाइम. अनडिस्टर्ब का मतलब लीव इट का मतलब इसको छोड़ दीजिए पानी डालकर. अनडिस्टर्ब का मतलब बिना हिलाकर उसको ऐसे ही एक टेबल पे छोड़ दीजिए. ओके, फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए. अलाउिंग द कंपोनेंट्स टू सेटल डाउन. ओके, कंपोनेंट्स का मतलब जो चीज़ उसके अंदर है, सेटल डाउन, अंडरलाइन द वर्ड सेटल डाउन ऑल्सो. जो सेटल डाउन का मतलब क्या है? जो उसके अंदर जो हम लोग ने सॉइल डाला हुआ है उसको सेटल डाउन होने के लिए, एक स्टेबल होने के लिए आप लोग उसको थोड़ी देर के लिए बिना हिला के, बिना उसको चलाकर उसको ऐसे ही रख दीजिए टेबल पर. ओके, देन आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर चिल्ड्रेन. फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट व्हाट इज़ द थिंग? एम. आपको एम, ये इस चीज़ क्या करने के लिए आपका एम क्या है? एम है तो योर एम इज़ टू फाइंड आउट व्हाट सॉइल कंटेंट्स. आप लोग को क्या फाइंड आउट करना है? सॉइल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं. जैसे कि हम लोग ने पढ़ा ह्यूमस, मॉडी वाटर, क्ले, सैंड स्टोन ना. तो इस चीज़ के लिए यू हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट. सेकेंड वन इज़ मटेरियल्स रिक्वायर्ड. आप लोग को क्या क्या चीज़ चाहिए वो फाइंड आउट करने के लिए. एक चाहिए आप लोग को सॉइल, हैंडफुल ऑफ सॉइल का मतलब है एक मुट्ठी भर का मिट्टी. देन ट्रांसपेरेंट जार. ओके, ऐसे ही ग्लास का जार, एक बॉटल. जार मीन्स क्लियर वाटर, और सफ़ेद पानी, जो सफ़ेद पानी होता है, सफ़ेद मीन्स क्लियर वाटर मीन्स साफ़ पानी. ओके, साफ़ पानी आपको चाहिए. देन प्रोसीड्यूर का मतलब आपको क्या करना होगा पहले. ओके, टेक अ ट्रांसपेरेंट जार. पहले आपको एक जार रखना होगा टेबल पे. उसके बाद वो हैंडफुल ऑफ मिट्टी उस पर डालना होगा. उस डालने के बाद उसके ऊपर जो क्लियर वाटर है, साफ़ पानी है, उसके ऊपर डालना होगा. उसके डालने के बाद उसको बिना हिला के, बिना चला के एक साइड पे, टेबल पे रखना होगा. so that all the components that you have put inside the jar may settle down. Okay, settle down होने के लिए आपको उसको ऐसे ही रखना होगा. all right children.
After that is what? Observation. Observation. Underline the word observation. Observation का मतलब क्या आप देख सकते हैं वहाँ पर? ओके, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? आपको क्या दिखाई पड़ेंगे उसके बाद? देखिए, small stones deposit at the bottom of the jar while a layer of sand forms above the stones. Just above the sand is the muddy layer formed by clay. The top layer is dark and contains humus. The water just above the last layer may not be clear. Okay, now what you can see here is observation. Observation का मतलब आपको क्या दिखाई पड़ेंगे? Small stones. Okay, small stones का मतलब छोटा छोटा पत्थर deposit at the bottom of the jar. Okay, while a layer of sand forms above the stones. तो उसके बाद क्या? ओके, अंडरलाइन द वर्ड बॉटम. बॉटम का मतलब सबसे नीचे. ओके, एंड जार वाइल अ लेयर ऑफ सैंड फॉर्म्स अबव द स्टोन्स. तो उसके बाद आपको क्या दिखाई पड़ेंगे? ये स्मॉल स्मॉल स्टोन्स. स्मॉल स्टोन्स का मतलब है छोटा छोटा क्या? लाइक छोटा पत्थर जो होता है. ओके, जो छोटा पत्थर है, यू कैन सी ऑन पेज नंबर 130 दैट स्मॉल स्टोन्स क्या होता है? नीचे, सबसे नीचे डिपॉजिट होता है. ओके, तो उसके बाद जस्ट अबव द सैंड. ओके, जस्ट अबव द स्टोन्स, वो स्टोन के ऊपर क्या होता है आपको? यू कैन फाइंड द सैंड. सैंड. ओके, तो सैंड फॉर्म. सैंड का मतलब क्या है? बालू. तो स्टोन सबसे नीचे पहले आप लोग को छोटा छोटा पत्थर दिखाई पड़ते हैं, उसके ऊपर सैंड. सैंड का मतलब है बालू. और जस्ट अबव द सैंड इज द मडी लेयर फॉर्म बाय क्ले. मडी लेयर. मडी लेयर का मतलब क्या है? मडी लेयर मीन्स कीचड़ वाला मिट्टी. ओके, तो बालू के ऊपर व्हाट यू कैन सी इज द क्ले. क्ले का मतलब है कीचड़ का मिट्टी. ओके, कीचड़ वाला मिट्टी. द टॉप लेयर इज डार्क एंड कंटेन्स ह्यूमस. सबसे ऊपर का भाग में क्या होता है? इज इट विल बिकम डार्क. ओके, डार्क का मतलब क्या है? काला. काला पानी आपको दिखाई पड़ते हैं कहाँ? जहाँ पर यू कैन सी द ह्यूमस. ओके, ह्यूमस. व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमस? खाद मिट्टी. ओके, यू कैन सी द ह्यूमस. ह्यूमस का मतलब खाद मिट्टी. द वाटर जस्ट अबव द लास्ट लेयर मे नॉट बी क्लियर. जो लास्ट लेयर, लास्ट लेयर में क्या है? स्मॉल स्टोन्स एंड पेबल्स. वो उसके ऊपर का जितना भी पानी होता है वो क्लियर, एक भी क्लियर नहीं होता है. ओके, सो कंक्लूजन. कंक्लूजन का मतलब रिजल्ट. रिजल्ट क्या है? सॉइल इज मेड ऑफ रॉक पार्टिकल्स, क्ले, stones and the remains of dead plants and animals. तो इसका मतलब है ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोग को लाइक क्या होगा? वी विल गेट द रिजल्ट दैट soil is actually made up of rock particles. Okay, rock particles का मतलब soil सचमुच में किससे बना हुआ है? एक बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा, rock particles से, जैसे कि clay. ओके, क्ले मीन्स आई टोल्ड यू, क्ले का मतलब है कीचड़ वाला मिट्टी. स्टोन्स, राइट, स्टोन्स का मतलब छोटा छोटा पत्थर. एंड द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी अंडरलाइन करिए. रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का मतलब क्या है? एक मृत पौधे और जानवर के अवशेष. ओके, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के मतलब है एक मृत, ओके, पौधे और जानवरों के क्या है? अवशेष. ओके, so that is called remains of dead plants and animals. So soil, it is made up of rock particles, clay, stones and the remains of dead plants and animals. All right, here you can see at the bottom of the experimental jar. experimental jar के bottom में क्या है? stones. उसके थोड़ा ऊपर है sand. राइट, सैंड. यहाँ पर आप लोग का जो एक्सपेरिमेंट आप घर पे करेंगे उसमें भी आपको ऐसे ही पिक्चर्स दिखाई पड़ेंगे, ऐसे ही चीज़ दिखाई पड़ेंगे. उसके थोड़ा ऊपर है सैंड. सैंड है बालू. बालू के थोड़ा ऊपर आपको दिखाई पड़ेंगे क्ले. क्ले मीन्स कीचड़ वाला मिट्टी. देन आफ्टर दैट इज मडी वाटर. मडी वाटर का मतलब जो कीचड़ से बड़ा पानी. ओके, डार्क वाटर, तो जिसमें मड्स वगैरह होता है. तो उसके बाद ऊपर में सबसे टॉप लेयर्स में यू कैन फाइंड आउट द ह्यूमस. यू कैन सी द ह्यूमस. ह्यूमस मीन्स रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो दिस इज द picture you see after doing the experiment. I want you all to do this experiment at home. All right, children, and see whether the components of soils are what?
remains of rock particles or not, whether the component of soil is clay, what stones, and the remains of dead plants and animals. All right, you can see the result. Okay, there you can see the conclusion there. All right, children, this is it for today. I want you all to go through this, okay, activity 3.1 and do the experiment at home. All right, so okay, study well, children, and stay safe. Okay, thank you.